Good morning to everyone. Here Dr. Diwakar Shukla, Professor in Pharmacognosy and Phytochemistry, Pharmacy Academy, Faculty of Pharmacy, IFT University, Muradabad. Today I am happy to saying that giving me opportunity as a convener in its national webinar organized by the Scientific Era, which is theme on artificial intelligence in pharma, bridging academia and industry for innovation. So heartfelt. Thanking you so much with regards to Mr. Sudhanshu Kumar Jha sir, chairperson of Scientific Era, and also him blessed by the God Sri Jagannath ji. Firstly, welcome present here to all dignitary researcher and participant in the next 8th national webinar, which is topic on artificial intelligence in the pharma bridging academia and industry for innovation. Its national webinar will be very informative session and scientific useful related with the role of AI pharma between the academia and industry. Warm welcome to Sudhanshu Kumar Jha sir. He has done pharma and medicinal chemistry pursuing PhD from Bundelkhand University, Jhansi. He is currently working as a scientist at Center for Integrative Oncology, All India Institute of Ayurveda, Government of India, New Delhi. He is also founder, chairperson, and editor-in-chief, Scientific Era, Haryana. This is renowned organization to focus on research and development firm, which was officially inaugurated by Honorable Sri Sripad S.O. Naik Ji, Ministry of State and New and Renewable Energy, Government of India. Additionally, he serves as the Research and Development Director at Hubs Ayurveda. He has worked as a researcher in the pharma department on the project profiling and phytochemical in Ayurveda, medicinal formulation and understanding there the aggregation behavior collaborative IMR initiative between the Central Ayurveda and Research Institute, Jhansi, Ministry of Ayush, Government of India, IIT Gandhinagar. Mr. Jha has honored with the prestigious Young Researcher Award in 2024 by the Institute of Scholar. He has also served organized secretary in various international webinar, collaborative webinar, and national webinar under the banner of Scientific Era. In addition, his research career, Mr. Jha is former actor and model with the music video 4 million view on the YouTube. He has also held roles as a production head and research supervisor, formulation scientist, assistant professor, and managing editor. His core expertise lie in the medicinal chemistry with a strong focus on wet lab, synthetic chemistry, analytic techniques, and molecular docking, evaluation of both conventional drug and medicinal plant. He is a proficient in a modern analytical tools such as HPLC, HPLC, LCMS, GCMS, and in silico analysis, while his research portfolio spans in a vitro and in vivo pharmacological history, molecular docking mechanism, and network pharmacology. Mr. Jha has a extensive academia and research record with the various review and research articles published in a reputed journal, including Scientific Reports, Frontier, Springer, Nature, William and Spare. He has also contributed to more than 12 books, chapter, authored 5 books on international platform, and published 1 book Amazon. Furthermore, he holds 10 published patents, 4 copyrights, 10 Indian design grants, and 3 international design patents from the United Kingdom. He is active participant in more than 85 national and international conference, seminar, workshop, underscore his dedication to society betterment and national sustainable development. This is the brief about the introduction, Chairperson Sudhanshu Kumar Jha sir, and also a lot of thanks to present here at national webinar coordination, Mr. Sunil Kumar Chaturvedi sir. He is currently serving as a assistant professor at Major SD College of Pharmacy. He is a previous worked as a research associate in a research development department at Nectar Life Science Limited, Chandigarh. Moreover, he holds specialization in pharmaceutics with a research expertise in a novel drug delivery system, particular nanotechnology-based formulation. Furthermore, he has published several articles and book chapter in reputed international journal and with the leading public start. Good morning, everyone. First of all, my heartfelt thanks to Dr. Diwakar Shukla sir for his kind words and thoughtful introduction.
I truly appreciate his concern, encouragement, and support. It's a pleasure to welcome you all to the 8th National Webinar organized by Scientistic Era. This platform has been continuously fostering collaboration among researchers, academicians, and professionals across the country, creating a strong network for knowledge exchange and innovation. The theme of today's webinar, which is AI in Pharma, Bridging Academic and Industry for Innovation, is both timely and significant. Artificial intelligence is reshaping the pharmaceutical field by accelerating drug discovery, optimizing formulation development, and strengthening the link between academic research and industrial applications. I would also like to express my sincere appreciation to our eminent speaker and all participants for joining us and contributing to this interactive and knowledge-driven session. A special mention goes to our organizing secretary, Mr. Sudhanshu Jha, whose unwavering commitment and thoughtful planning have made this event a valuable platform for scientific discussion and innovation. His continuous efforts in promoting research-oriented dialogue truly reflects the vision of Scientistic Era. As we continue this intellectual journey, it is my privilege to invite Mr. Sudhanshu Jha, Organizing Secretary of Scientistic Era, to share his insights and take forward the theme of today's webinar. Thank you. Thank you, sir. And good morning, everyone. I warmly welcome you all to the 8th National Webinar organized by Scientistic Era. With us today, we are honored to have our eminent guest speaker, Dr. Abhishek Mishra, Professor of Computer Science, IFTM University, UP, who possesses a vast experience in the field of computer science. We are also joined by our program coordinator, Dr. Divakar Shukla, Professor, Department of Pharmacognosy and Phytochemistry, IFTM University, UP. He is a distinguished academician and researcher over decades of experience. In addition, we have with us our program convener, Mr. Sandeep Kumar Chaturvedi, Assistant Professor, Major S.D. Singh College of Pharmacy, UP. He is also a young and dynamic academician and researcher in the domain of pharmaceutics. So today's theme of webinar is based upon artificial intelligence in pharma, bridging academia and industry for innovation. For me, how I can see this, like AI technologies are beyond the pharmaceutical sector. Their role in enhancing the drug discovery, optimizing the production, and connecting academia research with industrial application to drive innovation and better healthcare outcomes. Now it's my great pleasure to invite Dr. Abhishek Mishra, sir, Professor of Computer Science, IFTM University, UP, to share his valuable insights and expert knowledge on today's theme. Sir, we are eagerly looking forward to your enlightening talk and guidance on how artificial intelligence can transform the future of pharmaceutical industry. Thank you, sir. Over to you. My voice is audible? Yes, sir, audible. Thank you, Mr. S.K. Jha, sir. First of all, it is a great pleasure to be the part of this enlightening webinar on artificial intelligence in pharmacy, bridging academia and industry for innovation. I am voice is coming or not? I am truly honored to have been given this opportunity to share my insights such as relevant and rapidly evaluating topic on artificial intelligence in pharma. I extend my heartfelt gratitude to Mr. Sudhanshu Kumar Jha, Chairperson of Scientistic Era, Haryana,
and organizing secretary of this webinar for their effort to invite me as eminent speakers for this webinar, and also filling the gap between the students of the computer science, of engineering, as well as for pharmaceutical backgrounds. I warm welcome all the participants joining us today by Google Meet, YouTube, etc. I am genuinely delighted to contribute to this important discussions and look forward to engaging exchange of ideas between the students and the academicians. Today's journey through AI-powered pharma, we will discuss about some backgrounds and the recent advancements, some case studies of the real worlds from the pharmacy backgrounds, and how academia and industry collaboration will benefit the society. What are the some challenges or the obstacles in the AI fields for incorporating the pharmacy industries, and what are the future directions, next frontier of AI in pharmaceutical innovations. In the present scenario of pharmaceutical innovation crisis, if we cover, there are most of the cost of the any type of fundings will expand in the R&D costs. Developing a single FDA approved drug can cost 1.5 to 2.6 billion cost is engaged for the industries. And for the drug development point of view, a drug may contain at least 10 years for coming in the markets. In third point of view, out of 10, one drug is approved by the any FDA societies. 90% of failure rates are captured in the pharmacy industry for the drug development. Next point is big data and challenge. Pharmacy sector generates vast amounts of data, and clinical and chemical point of view, only less amount of data is useful for the development of any types of drugs. The rest of the data is uncovered. And regulatory pressures, any agencies, any manufacturers, there is pressure that he should deliver efficacy and transparency standards, follow the standards, and creating bottlenecks that slow the innovation cycles of the drug industry. These are the key points we will discuss in this webinar. How artificial intelligence. Artificial intelligence is a technology that is designed to perform physical tasks that are typically managed by human intelligence. Human intelligence means involving learning, adopting learning, and used for the decision making. Artificial intelligence provides major benefits in the current industry of the pharmacy, automations, personalized experience, personal computing, healthcare sectors, retail sectors, banking sectors, agriculture sectors, as well as in the industry of pharmacy and medical. Main AI, artificial intelligence, mainly used in the health sector. There is the demanding sectors where the AI, how AI can be useful for providing the betterment of the health of the society. These are the basic business challenges in any organization in which how the organized work efficiently. AI can help automate the complex systems for the betterment of the any organizations. Second point is skilled workers are spending their times for repetitive tasks. By using AI, artificial intelligence, or machine learning, or deep learning, workers have saved the times, and the remaining times he can use for the new types of technology or the innovations. Third major point says enormous volumes of data remains untapped. There, at present scenario, we are developing many types of the data related to pharmacology, any types of drug development.
These are the major benefits of the artificial intelligence in transforming the people and the organization. First one is forecast. Rapid find artificial intelligence mainly used for the finding the patterns on the vast data set. If very huge amount of data is available and artificial intelligence have the capability to find the patterns which can be used for the prediction of the data, prediction of the any types of information that is used for the scientists under the tech industries. Second one is the automation. Ensure consistency for complex processes. There are many types of scenarios where the algorithms is not proposed by any scientist for the complex work. But by using the artificial intelligence, models, machine learning models, we can automate any types of complex systems, and that systems can be used for the prediction of any kind of information that is helpful for the society or for the industry person. Third point is optimize. Optimization means using fewer resources or using less resources, you can perform your task. The same task is performed by the fewer resources. It's come in the category of the optimization of any industry. Next one is personalization. If we deliver unique attention to any person, that will help the society for the personalized experience. These are the major benefits for the artificial intelligence in day-to-day life. Now we come to the artificial intelligence of types. There are so many types of artificial intelligence. We heard about the books and the social media platform or the Googles that are in the category of the machine learning, deep learning, supervised learning, self-supervised learning, unsupervised learning, neural network, big data, prediction, transforming, transformer learning, random forest, classification, statistics and regression. बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स मार्केट में यूज किए जा रहे हैं जो कि लर्निंग मेथडोलॉजीज को हमें इम्प्रूवमेंट के लिए, और इनमें क्या डिफरेंस है हमें इनको स्टडी करना. व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन these different types of learning, how they are useful for the artificial intelligence, what are the basic differences, at what times of data set are used, which type of data sets are used for the different types of learning. What is the basic difference in the pharmaceutical research and development point of view? So we will cover in this seminar of different types of models or different types of the learning models, artificial intelligence learning models, machine learning models for predicting the any types of disease, any types of the clinical reports which is helpful for any persons. From the beginning of artificial intelligence from the pharmaceutical development in 1990 on the basic theory of data algorithms, and the algorithms are used in 2012 to 2020, where the deep learning technology, deep learning methodologies are used in practice. In advancement, it is the advancement of the neural network. And at the time of 2012, when the CPU central processing unit is used, after there are the various types of the graphical data is available in the market. On the basis of this graphical processing data, there the graphical processing unit GPU technology is used in place of the CPU. It is the 10 to the power 5 times more faster than the previous technology. And the deep learning technology is completely based on the advancement of the neural network theory, and the AI application for drug development is mainly used for the 2020 for the predicting of any kind of disease. And in the 2021 or 2020, that the COVID pandemic came in the market. At that time, the artificial intelligence is used for the predicting the finding the COVID-19 positive cases. And at the present scenario of the market in the 2024, Nobel Prize was given
on the artificial intelligence research. These are the Nobel Prize winners in the subject of chemistry, Demis Haspis and John M. Jumper. They belong to the organization Google DeepMind, and these are the presidents of the Google DeepMind. It is the company, it is the project, health project developed by the Google Alphabet organization. The Nobel Prize is given by the Society for the Prediction of Protein Structure of Proteins. Protein is the main components of the related to health. For the structuring the protein, this is the major problem from the last 50 years. And Demis Haspis developed a AI-based systems that is used for the protein structure prediction. This is the AI artificial intelligence-based platform that is AlphaFold 2, named as AlphaFold 2, is developed by these persons, and it is used for the prediction of the protein structure. Nobel Prize given in 2024. Main discussion point here is that research related to artificial intelligence and that help for the human society is very highly valuable. These are the deployment models, different types of artificial deployment model related to artificial intelligence. First one is the higher version of artificial intelligence, that is machine learning. In the machine learning concept, we simply trains the data related to their output for improving the accuracy for the betterment of the predicted results. In the machine learnings, we provide some input and some output for the machines for any types of training. After training, we predict the new results, we predict the new patterns for the new input where the input is predicted by any person. Second variations of this is the neural network. Neural network is the interconnected nodes of logic that are the building blocks of AI system. Basic components of the neural network is the neurons. The neurons it is a simulation of the human minds related to any types of machines. जैसे माइंड में हमारे पास कई तरह के न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं और आफ्टर दी प्रोसेसिंग दे प्रोवाइड द prediction or the result. The same type of concept, same types of theory here is used in the concept of artificial neural network. And they bring in the network and provide the results after the processing of the data. Next one is the computer vision. Computer vision is the machine learning, extension of machine learning that uses cameras or the images to understand the physical world. When we are using the better quality images as a input for prediction any types of disease, that is come in the category of the computer vision machine learning. And final one is the deep learning. As the name suggests, deep learning, when the multi-layered machine learning is working on the multi-layered machines. जब हमारे पास डीप मशीन लर्निंग कई सारे लेयर्स को क्रॉस करके there are so many types of layers, max pool layer, federal layers are used for prediction the data, for prediction the result. That is the concept of deep learning. We will discuss later in the seminar about the deep learning concepts. From the beginning of artificial intelligence, it is the system with human-like behavior by using algorithms. When in the 1980s, when the chess program is developed by any developer of the computer as a software engineer, that it also replaces a man's intelligence. When man can play with the computers as well as by the another persons. Then as artificial intelligence replace one man by using the algorithms. And after the improvement of the artificial intelligence, machine learning came in the picture and achieves AI by using algorithms on the trained with data. जब हम इनपुट डेटा एंड आउटपुट डेटा प्रोवाइड करते हैं
और on the basis of input and corresponding output मशीन को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, और ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद जब आपके पास कुछ भी रिजल्ट को जब मशीन ट्रेंड हो जाती है, that provide the 90% एक्यूरेसी, एंड उसके बाद जब वो नए रिजल्ट को क्या करते हैं, बाद में बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, बेटर प्रोडक्शन रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं इन द केस ऑफ द मशीन लर्निंग. 75 or 65% of data set is used for the training, and 25 or 20% of data set mainly used for the testing purpose. On the basis of huge data, where the huge data is available, that the testing is, when the training is worked out on the huge data, then it provides the better result. In some cases, when the training case, the machine provides the better results, but in testing case, it provides not the better result as per the claimed by in the training phase. So it depends on the training and testing on which the data, on the which the training is provided. Next one is deep learning. Deep learning use the concept of artificial neural network, means advanced and combined with the advanced machine learning algorithms. Deep learning में mainly हम advanced machine learning algorithms use करते हैं, as well as neural network, artificial neural network का concept deep learning में mainly use किया जाता है. And as well as there are so many times of training process occurred within the model for providing the better results. In present scenario, in 2020, at present time, deep learning methodology is used for the prediction of results. Deep learning का another requirement deep learning के साथ ये है कि अब जब हमारे पास हैवी अमाउंट्स ऑफ डेटा अवेलेबल है, उसके बेस पर जब हम कोई मॉडल तैयार करते हैं तो वो डीप लर्निंग मॉडल की कैटेगरी में आता है. क्यों? क्योंकि उसमें कई तरह की लेयर्स से वो जो ट्रेनिंग होती है एक्चुअली प्रोवाइड की जाती है, इसीलिए इसका नेम सजेस्ट किया गया है डीप लर्निंग. दिस इज द होल पिक्चर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द AI, artificial intelligence model, which is used in the artificial intelligence scenario. First is the bigger level, there is the artificial intelligence. Second is the machine learning models, and after that in the inner level, that is the deep learning. There are the बहुत different types of learnings models are there. First one, supervised learning, regress. In the supervised learning category, there are two concepts of regression and classification. In the unsupervised learning, there are two concepts, clustering and dimensionality reduction. And the third category is the self-supervised learning, where is the context time contrast. Next one is semi-supervised learning and intensive learning. There are different types of machine learning algorithms in the market for the purpose of different types of purpose. In the machine learning models, there are different types of models are there, such as K-means algorithms for the clustering, random forest algorithms, AdaBoost algorithms, kernel-based algorithms, KNN, PCA, LDA, and Bayesian algorithms, and regression algorithms. For the deep learning point of view, there are different types of DNN algorithms, such as convolutional neural network, CNN, RNN, recurrent neural network, FNN, GNN, graphical neural network, and the new concept at the present scenario, that is the concept of transformer. How we can develop an AI models? In the AI development workflow involves three main stages. First is data process, pre-processing, in which the data that is available in the market is analyzed and cleaned and formatted according to user's requirement, according to scientific requirement. Next one is algorithms and framework, which algorithms and framework is used for predicting the results on the basis of data pre-processing. Final step, we provide the training to the model, and when we satisfy that the training is completed and it's providing the better results on the testing phase, then
It is used for the inferencing, making predictions, and for the decision-based symbol on new data to demonstrate in real-world applicability. जब हमारे पास मॉडल प्रिपेयर हो जाता है, after that we deploy this model commercial point of view. Now we come to the pharmacy and R&D process. For the pharmaceutical point of view, if we cover that if we find the target, first we decide what is the target discovery. Then we move to the lead finding. What are the findings of our product? And then after finding, we go to the preclinical phases of the R&D process. After completing the preclinical process, we go to the clinical trials. After clinical trials, the claim goes to the regulatory, and when the regulatory approve the product or the drug, then it go to the manufacturers, and then manufacturers develop this project and provide to the market. And according to artificial intelligence point of view, there are several steps: target discovery, lead finding, preclinical, clinical trials, regulatory trials, and manufacturing. And at every point of view, artificial intelligence can be used. And our objective is at which type of model is used at which place. At the preclinical trials, AI can be used. In clinical trials, artificial intelligence can be used. For the manufacturing point of view, artificial intelligence can be used. And artificial intelligence, machine learning models, deep learning models can be used at any point of view in the pharmacy R&D process. In this slide, we go to the last slide, last point, where is the development of the systems, and the systems with human-like reasoning to optimize the drug development process, manufacturer or trials operation. In this concept, development of systems is mainly used in the deep learning or the AI learning. And deep learning and AI learning can be used for the, as we discussed, the high dimensional data. जब हमारे पास हाई डायमेंशनल डेटा होगा, उस समय हम डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट मेनली यूज करेंगे. और हाई डायमेंशनल ट्रांजेक्शनल डेटा होगा ऑन प्रेडिक्शन के लिए हम मशीन लर्निंग का यूज करेंगे, ट्रायल्स के लिए हम मशीन लर्निंग का यूज करेंगे, एंड स्मॉल मीडियम डायमेंशनल डेवलपमेंट के लिए हम मशीन लर्निंग का यूज करेंगे. Now we move to the applications of artificial intelligence in wearable device. At present times, हम सभी लोग बहुत तरह की वेरिएबल, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट शर्ट, ब्लूटूथ की ट्रैकर, स्मार्ट शूज, स्मार्ट पैंट्स, स्मार्ट सॉक्स, स्मार्ट बेल्ट, सभी स्मार्ट रिंग, स्मार्ट फिंगर एंड स्मार्ट ब्रेसलेट यूज कर रहे हैं. What are the main purpose of these type of wearable devices? Mainly, these type of wearable devices is used for predicting the disorder of any types of disorders in the body. First, we discuss about the health monitoring. Health monitoring के लिए wearable devices mainly use की जाती है. For detecting the irregular heart rhythms, sleep disorders की problems इस समय ज़्यादा अकर्स हो रही है, and early signs of chronic disease. बहुत तरह की disease हमारे बॉडी में, हमारे इस समय के जो फूडिंग एंड ईटिंग का प्रोसेस है, उसके वजह से डिजीज, क्रॉनिक डिसीज डेवलप होती रहती है. तो उनके यदि हमें पहले से डायग्नोज हो जाती है, पहले से यदि हमें सिम्टम्स मिल जाते हैं, अर्ली साइंस यदि हमें मिल रहे हैं, तो हम उन डिजीज को पहले से ही फाइंड करके उनके रिगार्डिंग कुछ तरह का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं. तो इसलिए वेरेबल डिवाइसेस यूज की जा रही हैं फॉर द हेल्थ मॉनिटरिंग. सेकेंड वन, फिटनेस एंड परफॉर्मेंस. AI coaches offer personalized worked out plans based on your activity and recovery and goals. फिटनेस एंड परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए भी वेरेबल डिवाइसेस मेनली यूज की जा रही हैं. क्या इनका पर्पज है? नेक्स्ट वन इज द, इस समय प्रेजेंट में जो सबसे ज्यादा तरह की जो रिलेटेड हैं, इट आर रिलेटेड टू द मेंटल वेलनेस. AI ट्रैक मूड, स्ट्रेस एंड कॉग्निटिव लोड यूजिंग वॉइस टोन. आपकी आवाज से, आपकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी से, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से आपकी मेंटल वेलनेस को
करेक्ट करने के लिए भी बहुत सारे के AI टूल्स मार्केट्स में हैं. डिवाइस लाइक Aura Ring is used for the measuring the mental wellness of the any human. Next one is productivity and memory. Gadgets like Be Pioneer Edition and Plot Note Pin record conversation and summarizing meeting using AI. अब इस समय मान लीजिए इस मीटिंग को हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इस मीटिंग में हमारा क्या डिस्कशन कर रहे हैं. इसके लिए पहले के समय में हमारे पास एक राइटर हम यूज करते थे जो कि इस तरह की मिनट्स ऑफ मीटिंग को प्रिपेयर करता था कि इस तरह की मीटिंग में क्या चीजें हमारी फाइनल हो रही हैं. लेकिन एट प्रेजेंट ऑफ टाइम बी पायनियर एडिशन, प्लॉट नोट पिन, हमारे पास ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो हमारे बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है उसको समराइज करके और एक पेज में, वन पेज में आपको नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं कि इस मीटिंग की प्रोडक्टिविटी क्या है, इस समय हमारे पास क्या काम चल रहा है. नेक्स्ट वन इज द मेडिकल डायग्नोस्टिक. मेडिकल फील्ड्स में AI वेरिएबल डिवाइसेस का काफी यूज हो रहा है. AI वेरिएबल डिवाइसेस असिस्ट इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ कंडीशंस लाइक पार्किंसंस डायबिटीज. पार्किंसंस डायबिटीज है. डायबिटीज जनरली आदमी को पता नहीं चल पाता है कि उसे डायबिटीज की बीमारी है, लेकिन जब उसे पूरी तरह से उसकी गिरफ्त में आ जाता है तब उसे उस चीज का आइडेंटिफिकेशन डॉक्टर के द्वारा किया जाता है. यदि वो कोई ऐसी वेरिएबल डिवाइस को यूज करे जिससे उसकी डायबिटीज का लेवल्स पहले से ही मॉनिटर होता रहे और जब उसके साथ प्रॉब्लम हो तो वो उसको नोटिफिकेशंस सेंड कर दे. इवन दो इन द केस ऑफ द स्किन कैंसर बाय एनालाइजिंग मूवमेंट एंड ग्लूकोज लेवल एंड डर्मल इमेजेस, बहुत तरह की इस समय स्किन डिजीजेज या डर्मल इमेजेस हमारे पास स्किन से रिलेटेड बीमारियां चल रही हैं. स्किन कैंसर इस समय हमारे सोसाइटी में बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है. क्यों? क्योंकि जब वो पूरी तरह से कंप्लीट किसी की बॉडी में अगर हो जाता है तब वो उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है डॉक्टर्स की हेल्प से. लेकिन यदि हमारे पास कुछ ऐसे मॉडल्स आ जाएं जिसकी हम आपकी इमेजेस को, आपकी स्किन की इमेजेस के बेस पे प्रेडिक्ट कर पाएं कि आपको स्किन कैंसर की पॉसिबिलिटी है. अभी आपकी बॉडी में स्किन कैंसर मान लीजिए 10% डेवलप हुआ है, अगर आप इसका अभी प्रॉपरली इलाज करा लेते हैं तो आप स्किन कैंसर से बच सकते हैं. इस तरह से AI मेडिकल इमेजेस के बेस पर काफी हेल्पफुल हो सकता है फॉर प्रोटेक्टिंग स्किन कैंसर डिजीजेस. नाउ वी कम टू द मशीन लर्निंग मॉडल्स. There are different types of machine learning model. In case of simple, यदि हम मशीन लर्निंग को एक्सप्लेन करें तो हमें करना क्या है कि मशीन को ह्यूमन की तरह हमें ट्रेन करना है. मशीन को हमें एक तरह से डॉक्टर बनाना है जो कि आपके इनपुट के बेस पर आपको प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर पाए. जो आपने इनपुट्स कहा, जो आपने उन्हें अपने बीमारी के बारे में, कोई भी डिजीज के बारे में डॉक्टर्स को बताते हैं और डॉक्टर्स उस इनपुट के बेस पर आपको प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में दवाई या मेडिसिन प्रोवाइड कर देता है. इसी तरह से हम कोई मशीन डेवलप करें जिसको कि हम केवल और केवल प्रिस्क्रिप्शंस बताएं, केवल और केवल हम इनपुट दें कि हमें इस तरह की डिजीज है, उसके बेस पर वो केवल आपको प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करे, कुछ मेडिसिन प्रोवाइड करे. इनिशियली बेसिक लेवल पे तो इसका हम यूज कर ही सकते हैं. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल. These are using at present scenario for predicting the results. First one is random forest. For drug response prediction, toxicity screening and biomarker identification. Drug response prediction से ड्रग कितने टाइम में आपकी बॉडी में रिस्पॉन्स करेगा, मान लीजिए 15 मिनट्स बाद, मान लीजिए 20 मिनट्स बाद, मान लीजिए 30 मिनट्स बाद. इसको प्रेडिक्ट करने के लिए पूरा टाइम, दवाई कोई भी आपकी ड्रग बनाया जाता है तो उसमें इस चीज का भी कैलकुलेशंस डॉक्टर्स को पता रहता है कि ये ड्रग आपका 10 मिनट्स बाद रिएक्ट करेगा या 15 मिनट्स बाद करेगा. अगर हमें कोई अर्जेंसी है, मान लो इन केस ऑफ हार्ट अटैक, अगर मान लीजिए कोई दवाई आपको 15 मिनट बाद मिल रही है और कोई दवाई आपको 5 मिनट में असर कर रही है, कौन सी मार्केट में बिकेगी? जो कि आपकी कम टाइम में असर कर रही है. तो ड्रग रिस्पॉन्स प्रेडिक्शन का यूज, ड्रग रिस्पॉन्स प्रेडिक्शन में रैंडम फॉरेस्ट हमारी जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स है या मॉडल्स है उसका यूज किया जा सकता है. सेकेंड वन इज सपोर्ट वेक्टर मशीन. सपोर्ट वेक्टर मशीन्स इज ए मेनली क्लासिफायर ऑफ द मशीन लर्निंग मॉडल. क्लासिफिकेशन के लिए
सपोर्ट वेक्टर मशीन्स का यूज किया जाता है। जैसे हमने तो एग्जाम्पल लिया प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रोडक्शन, प्रोटीन स्ट्रक्चर को प्रोडक्शन में हम यूज कर सकते हैं SBM। डिजीज डायग्नोसिस, मान लीजिए कोई इमेज है, उसमें इमेज में हमें कोई पता करना है कि इसमें कौन से सेल्स कैंसर के हैं, कौन से सेल्स नॉन कैंसरस के हैं, किस तरह का कोई भी कहीं पर भी उस बीमारी का इफेक्ट वहां तक पहुंच चुका है या नहीं पहुंच चुका है, उसके लिए हमें क्लासिफिकेशन की टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें हमें बताना पड़ेगा कि ये वाले जो सेल्स हैं वहां पर हमारा कैंसरस सेल्स प्रेजेंट नहीं है और यहाँ वाले तक कैंसरस सेल्स प्रेजेंट हैं। तो उस समय हमें क्लासिफिकेशंस की टेक्निक्स को यूज करना पड़ेगा। मशीन लर्निंग का जो बेस है वो किस तरह से है कि हमें क्लासिफाई करना है। यदि हम किसी चीज को प्रॉपरली क्लासिफाई कर पा रहे हैं, यदि हम प्रॉपरली बता पा रहे हैं कि ये आइटम्स हमारा क्लास 1 में आ रहा है, दूसरा आइटम हमारा क्लास 2 में आ रहा है, ये क्लास 3 में आ रहा है, तो इस तरह से यदि हमने क्लासिफाई प्रॉपरली कर लिया तो भी हमारी प्रॉब्लम्स 50% सॉल्व हो जाती है। मान लीजिए आपका कुछ भी आपके पास दिया गया, जैसे यदि हम मान लीजिए कोई भी डिजीज होती है तो हम ह्यूमन इंटेलिजेंस कैसे काम करता है कि वो पहले अपनी बीमारी को फाइंड करे, क्लासिफाई करेगा कि अब हमें किस तरह के डॉक्टर को हमें इस बीमारी को दिखाना है। सपोज हमारे आंख से रिलेटेड प्रॉब्लम, आई से रिलेटेड प्रॉब्लम तो आई स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, यदि हमारे लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम लंग स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। तो हम एक्चुअली में ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेस पर हम क्लासिफाई कर लेते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। सपोर्ट वेक्टर मशीन मेनली यूज फॉर द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसी भी टाइप का हो सकता है, चाहे वो इमेज के बेस पे हो, चाहे वो आपके डेटा के बेस पे हो, चाहे वो आपका किसी भी तरह का डेटा मार्केट में है। नेक्स्ट वन इज द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। इट इज द कंपल्सरी, इट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ behind the deep learning. Artificial neural network used for the predicting molecular activity, drug target interaction and patent outcome. कितने परसेंट आपका पेशेंट सेटिस्फाइड है उसके लिए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यूज किया जाता है। जरा कुछ नेक्स्ट इज द कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, दैट इज द CNN. CNN का मेनली जो यूज किया जाता है दैट इज फॉर द इमेज बेस्ड प्रोसेसिंग। अब इमेज से रिलेटेड यदि आपको कुछ भी काम करना है तो वहां पर हमें CNN मॉडल का यूज किया जाता है। इमेज बेस्ड ड्रग स्क्रीनिंग करनी है, हिस्टोपैथोलॉजी एनालिसिस करना है, प्रोटीन क्रिस्टल डिटेक्शन करना है, तो उसमें हम CNN मॉडल का यूज करें। आफ्टर दैट वी गो टू द रिकरेंट न्यूरल नेट। टाइम सीरीज एनालिसिस करना है, हमको चीज का प्रिडिक्शन करना है, क्लिनिकल ट्रायल मॉनिटरिंग करनी है। At that time we use the recurrent neural network. According to your data set, according to your requirement, we select the machine learning models. Machine learning models के साथ ये भी conditions है कि हमारे पास किस तरह का कितना हमारे पास data set available है, उसके बेस पर भी हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा मॉडल अपने प्रेडिक्शंस के लिए सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट वन है ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन, GBM और XGBoost, प्रेडिक्टिंग ड्रग डिस्कवरी, ड्रग एफिकेसी। अब हमारा ड्रग जो है तो कितने परसेंट लोगों को सेटिस्फाइड कर पा रहा है, उसका इफेक्ट कितने परसेंट जा रहा है, इसको प्रेडिक्ट करने के लिए हम GBM और XGBoost यूज करते हैं। एंड व्हाट आर द एडवर्स रिएक्शंस, इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है सोसाइटी में, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, तो इस सबको प्रेडिक्ट करने के लिए हम XGBoost एंड द ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स यूज करते हैं। दिस इज द होल पिक्चर ऑफ फॉर द क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इन दिस पिक्चर हिस्टोपैथिकल इमेजेस फॉर ट्रेनिंग के लिए हमने इसको यूज किए हैं। इनको जब हमने बाद में क्या किया है, अपने उन पिक्चर्स को जो हमारे पास इमेज आई उनको और रिफाइंड करके बेटर रिजल्ट्स को किया। After we go to the process data, resize and reshape, फिर डिफरेंट टाइप्स की इमेज होगी, डिफरेंट उनका स्ट्रक्चर होगा, तो उन सभी को जब हम एक तरह से मैनेज करते हैं, यदि हम कंप्यूटर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो पिक्सल्स ऑफ इमेजेस कन्वर्टेड इनटू नंपाई एरे, जो पिक्सल्स है उनकी इंटेंसिटी है वो कन्वर्ट कर दी जाती है किसमें, एरे में, बाय यूजिंग द नंपाई लाइब्रेरी ऑफ द पाइथन। इट मीन्स
firstly we go to the pre-processing of the data for resizing on the reshaping of the data set, and जब pre-processing हो जाती है then it go to the process of the CNN, फिर वो convolutional neural network में for the feature extraction के लिए दिए जाते हैं, और जब feature extract आपके हो जाते हैं तो वो fully connected neural network की methodology यूज की जाती है for the processing, और after the processing we find the कि अब हमारे पास जैसे हिस्टोपैथोलॉजिकल इमेजेस का हमने डेटा सेट लिया तो हम बता पाएंगे कि हमारे पास जो कैंसर है, वो ट्यूमर है, वो आपकी बिगिनिंग लेवल का है और द मेलिगेंट लेवल का। तो हायर लेवल कैंसर सेल्स में डेवलप हो चुके हैं या बिगिनिंग लेवल पर आपके सेल्स डेवलप हो चुके हैं, तो किसके बेस पे हम बताएंगे? ये हमारे कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के बेस पे बताएंगे, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है ये कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क बेसिकली तब यूज होगा जब हमारे पास जो डेटा सेट है वो किस टाइप का होना चाहिए? वो हमारे पास इमेजेस का डेटा सेट होना चाहिए। अब इमेजेस का डेटा सेट एक साइज में नहीं मिलेगा, डिफरेंट साइज में आपके पास अवेलेबल होगा, तो उसके लिए हमारे पास प्री प्रोसेसिंग करेंगे। तो हमने प्रीवियस स्लाइड में पहले बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्री प्रोसेसिंग ऑफ डेटा करते हैं। आफ्टर दैट वी सिलेक्ट द मॉडल, एल्गोरिथम और द फ्रेमवर्क, एंड उसके बाद हमें क्या करना होता है? हम प्रोसेस हमारे पास तो हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं मॉडल को, और फिर वो हम उसको डिप्लॉय करते हैं। तो बाय यूजिंग दिस फिगर हमारे पास इनपुट डेटा किसका है? हिस्टोपैथोलॉजिकल इमेजेस का है। उसको हमने प्री प्रोसेस किया, प्री प्रोसेसिंग की, उसको हमने कन्वर्ट किया। किसके लिए? हम उसको एरे में कन्वर्ट करते हैं। फिर हमने मॉडल यहाँ पर कौन सा यूज कर रहे हैं? दैट इज CNN मॉडल फॉर द फीचर एक्सट्रैक्शन। उसके बाद न्यूरल नेटवर्क यूज किया, तब हम उसको बता पा रहे हैं कि हमारे पास किस टाइप का मॉडल्स यूज हो रहा है। अब नाउ वी कम टू द डीप लर्निंग मॉडल। डीप लर्निंग मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो बहुत तरह के मॉडल्स आपके पास मार्केट्स में हैं। दैट इज जैसे हमारे पास है, हमने बताया अल्फा फोल्ड। अल्फा फोल्ड कौन सा मॉडल है? कि प्रोटीन स्ट्रक्चर को प्रेडिक्शन के लिए यूज किया जा रहा है, जिसको कि हमने बताया 2024 में आपको नोबेल प्राइज दिया गया है जिस प्रोटीन स्ट्रक्चर को प्रेडिक्शन के लिए। वो मॉडल हमारा कौन सा है? अल्फा फोल्ड एंड रोज TTA फोल्ड। दीज आर द मॉडल फॉर द ड्रग डिजाइनिंग, मॉलिक्यूलर डॉकिंग एंड प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रोडक्शन। अप्लाइड इन प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रोडक्शन अल्फा फोल्ड 2 हो गया। मॉलिक्यूलर मॉडलिंग के लिए आपका कौन सा होगा? रोज TTA फोल्ड। इनेबल्स एक्यूरेट डिजाइन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल कोई मॉलिक्यूल्स की डिजाइनिंग करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, उसको एक्यूरेटली डिजाइन करने के लिए एक्चुअली वी यूज द रोज TTA मॉडल्स एंड अदर टूल्स लाइक UNet, EfficiNet, ResNet and DashNet are commonly used to segment and classify skin lesions from dermoscopy images. बहुत तरह की स्किन रिलेटेड बीमारियां हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको पता लगाने के लिए कि वो आपके बॉडी में ज्यादा समय तक ना रह पाए, ज्यादा तरह से उनका इफेक्ट नहीं हो पाए, उसके लिए हम डीप लर्निंग मॉडल्स का यूज कर सकते हैं। वो डीप लर्निंग पॉपुलर मॉडल्स कौन से हैं? वो UNet है, EfficiNet है, ResNet है एंड DenseNet है। तो इमेजेस के बेस पे डीप लर्निंग की जब भी हम बात करेंगे तो वो बात की जाएगी, डेटा सेट कौन सा होगा हमारा? इमेजेस का होगा। और इमेजेस का डेटा सेट जब हमारे पास ह्यूमन से रिलेटेड है, ह्यूमन स्किन से रिलेटेड है, डर्मोस्कोपी इमेजेस हैं, तो वो सोसाइटी को या हेल्थ सेक्टर में काफी हेल्पफुल करेंगी कि यदि आपको पहले से ही पता चल जाए कि हमें इस तरह की बीमारी हो रही है तो उसका हम प्रिकॉशनरी उसका ट्रीटमेंट पहले से करवा सकते हैं। नाउ वी डिस्कस द डीप लर्निंग मॉडल्स दैट आर ग्राफ न्यूरल नेटवर्क। GNN is basically used to model molecular structure as graphs, excellent for drug discovery and compound analysis. ड्रग डिस्कवरी में GNN मॉडल्स का मेनली यूज किया जाता है, किसके लिए? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट वन इज द बायोबर्ड एंड द क्लिनिकल बर्ड। ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल्स फाइन ट्यून फॉर बायोमेडिकल एंड क्लिनिकल टेक्स्ट माइनिंग। जब हमारे पास किसी भी तरह की कोई भी हमारे पास पड़ा हुआ है क्लिनिकल टेक्स्ट, तो उससे हमें किसी तरह का डेटा सेट को इंसाइट्स करना है, उसको हमें फैच करना है, तो वहां पर
हम ट्रांसफॉर्म बेस्ड मॉडल्स का यूज करते हैं। ट्रांसफॉर्म बेस्ड मॉडल्स में क्या होता है, मेनली पूरे सेंटेंस के बेस पर, पूरे सेंटेंस में, पूरे पैराग्राफ में किस वर्ड का क्या मीनिंग है उसका एप्रोप्रिएट तरीके से माइनिंग कर पाते हैं। किसमें? ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल्स में। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इसका मेन कॉन्सेप्ट है फॉर डेवलपिंग बायो वर्ड एंड क्लिनिकल वर्ड। नेक्स्ट वन है जैन, जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क, यूज्ड टू जनरेट सिंथेटिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स और द सिमुलेट मेडिकल इमेजेस। जब भी हम रिसर्च की बात करेंगे तो हमारे पास मेडिकल इमेजेस का डेटा हमारे पास बहुत ही कम क्वांटिटी में अवेलेबल रहता है। फॉर द ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जब हम जितना ज़्यादा ट्रेनिंग का डेटा प्रोवाइड करेंगे तो उतना ही ज़्यादा हमारे पास मॉडल ट्रेन हो जाएगा। जितने ज़्यादा यदि हम किसी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो उतना बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करेगा एट द टाइम ऑफ द टेस्टिंग। तो अगर हमारे पास कम इनपुट डेटा अवेलेबल है तो हमारे पास एक मेथोडोलॉजी होती है, क्या करते हैं हम, जनरेट सिंथेटिक डेटा। तो हम सिंथेटिक डेटा को जनरेट कर लेते हैं जिससे कि हमारे पास इनपुट डेटा का साइज बढ़ जाता है और ट्रेनिंग आप बेटरमेंट तरीके से करवा सकते हैं किसी भी नेटवर्क की। तो जैन हमारा सिंथेटिक डेटा को जनरेट करने के लिए यूज किया जाने वाला मॉडल्स है। नेक्स्ट वी कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग extract insights from scientific literature, clinical notes and regulatory documents। बहुत तरह के डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन यदि हमारे पास डेटा सेट टेबुलर फॉर्म में है, इमेजेस के फॉर्म में है, तो वहां से तो हम डेटा जो ट्रेनिंग कराना किसी मॉडल के लिए इजीली पड़ जाता है। लेकिन जब हमारे पास टेक्स्ट के फॉर्म में डेटा है, सेट है, नोट्स के फॉर्म में है, लिटरेचर्स के फॉर्म में है, रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में है, तो वहां से मीनिंगफुल डेटा को एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाता है। उसके लिए हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज करते हैं। जैसे किसी भी ह्यूमन को यदि टेक्स्ट पढ़ने के बाद ही समझ में आता है कि इस बुक में क्या लिखा गया है, इस लिटरेचर में क्या चीजें गिवन हैं, इस क्लिनिकल नोट्स में क्या चीजें गिवन हैं, उसको रीड करने के बाद ही प्रॉपरली तरीके से बताया जा सकता है। तो यदि आपके पास 10 पेज का डॉक्यूमेंट्स है, सपोज 20 पेज का डॉक्यूमेंट्स है, तो पूरे 20 पेज आफ्टर रीडिंग कंप्लीट 20 पेज वी कैन फाइंड द वैल्यूएबल मैटर्स एंड एक्सट्रैक्ट इनसाइट्स। बट इन केस ऑफ टेबुलर डेटा इट इज नॉट इजी। स्पीड अप research and compliance by automating documentation and report generations। अगर हमें किसी रिसर्च की किसी भी कंप्लायंस को यदि हम ऑटोमेशन कर देते हैं तो उसकी क्या हो जाता है, उसमें स्पीड बढ़ जाती है। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज करके हम अपनी कंप्लायंस की स्पीड अप कर सकते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कैन हेल्प फार्मास्यूटिकल कंपनी। मेन प्रॉब्लम तो फार्मास्यूटिकल के साथ यही है कि उनका जो डॉक्यूमेंट्स वर्क है वो आपका रेगुलेटरीज पर डिपेंड है। उनके डॉक्यूमेंट्स को आपको हमेशा पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या नए रूल्स रेगुलेटरी बॉडीज ने डेवलप किए हैं, उनके अकॉर्डिंगली ही हमें कोई भी ड्रग डेवलप करना पड़ता है। तो उनको पढ़ने के लिए यदि हमारे पास ऐसा कोई नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल्स डेवलप हो जाता है जो कि उसके की फाइंडिंग्स को, की मैटर्स को आपको बता दे, तो ड्रग इंडस्ट्री के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। डिस्कवरिंग न्यू ड्रग कंपाउंड्स में हेल्पफुल कर सकते हैं, मैचिंग पार्टिसिपेंट्स टू क्लिनिकल ट्रायल्स में हेल्प कर सकते हैं, एज वेल एज फॉर मार्केटिंग इन फार्मास्यूटिकल्स फील्ड्स में भी इसका यूज किया जा सकता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ द रेनफोर्स्ड लर्निंग। बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग्स आर अवेलेबल। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। लेकिन हमें हमारी रिक्वायरमेंट जिस तरह की है, जिस तरह के हमारे पास डेटा सेट अवेलेबल है, सपोज हमारे पास टेबुलर डेटा सेट अवेलेबल है, सपोज हमारे पास ग्राफिक्स के फॉर्म में डेटा सेट अवेलेबल है, सपोज हमारे पास टेक्स्ट के फॉर्म में डेटा सेट अवेलेबल है, ठीक है। तो उसके रिक्वायरमेंट के बेस पर हम मॉडल तय करेंगे और अब वो मॉडल हमारा क्या प्रेडिक्ट करेगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होगी। इसलिए सभी लर्निंग है तो अल्टीमेटली सभी लर्निंग टेक्नोलॉजी है, लेकिन these are categorized on the basis of the data set। अब कौन सी लर्निंग किस डेटा सेट के लिए बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करेगी,
इसके लिए अलग अलग टाइप्स की लर्निंग मेथोडोलॉजी का यूज किया जाता है। जैसे हमने बताया कि डीप लर्निंग के केस में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, डीप लर्निंग के केस में न्यूरल नेटवर्क एंड मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट यूज होगा। ऐसे ही ट्रांसफॉर्मर लर्निंग के केस में न्यूरल नेटवर्क और आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर हमें पैराग्राफ्स के बेस पर सेंटेंस के कंप्लीट सेंटेंस का हमें मीनिंग निकालना है, और जनरली होता क्या है कि वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स निकाला जाता है और उसमें करेक्ट रिजल्ट्स कभी कभी नहीं आ पाते। अब नाउ वी गो टू द रेनफोर्स्ड लर्निंग। रेनफोर्स्ड लर्निंग इज द ऑप्टिमाइज्ड केमिकल सिंथेसिस pathway in manufacturing processes, help reduce waste and improve yield in product production। अब रेनफोर्स लर्निंग के कॉन्सेप्ट में क्या है कि अपने आप से ही चीजों को हमें मैनेज करना है। यदि हम कोई भी गलती कर रहे हैं तो उसको हमें नेक्स्ट टाइम अपने आप से ही इम्प्रूवमेंट करना है। तो इसका मेन यूज यहाँ पर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ड्रग के प्रोडक्शन फेज में रेनफोर्स लर्निंग का यूज किया जा रहा है। यदि आपने कोई ड्रग प्रोडक्ट किया, उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाई, तो फिर से आपको वही प्रोसेस से जाना है। नेक्स्ट टाइम आप फिर से ड्रग यूज करेंगे, उसने भी आपकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाई, तो आपको फिर से लर्निंग प्रोसेस में जाना है। तो इस तरह से जब आप बार बार लर्निंग प्रोसेस में जाएंगे तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और इट प्रोवाइड द बेटर रिजल्ट। सपोज जैसे स्वाइप एक्स है, ऐप इन इंडोनेशिया यूजेज रेनफोर्स्ड लर्निंग टू इम्प्रूव फार्मासिस्ट बिहेवियर। फार्मासिस्ट के बिहेवियर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन द हेल्थ सेक्टर। अब किस तरह से बात कर रहा है, आपकी बात को किस तरह से सुन रहा है, आपको कितने % अटेंशन दे रहा है, आपकी बात को प्रॉपरली समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। ठीक है, तो इस तरह के बिहेवियर को सही करने के लिए इंडोनेशिया में स्वाइप RX ऐप है जो यूज किया जा रहा है, जिससे कि फार्मासिस्ट के बिहेवियर को इम्प्रूव किया जाए। ठीक, यदि उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, वो किसी तरह की प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पा रहा है या किसी तरह से वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो स्वाइप RX ऐप है जो कि हेल्थ अवेयरनेस के बारे में फार्मासिस्ट को बताता रहता है और पब्लिक हेल्थ के बारे में, पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस की कैंपेन्स के थ्रू हम यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी यूज होगा, एज वेल एज फार्मासिस्ट के बिहेवियर को भी हम सुधार सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे एप्स हैं, क्यू लर्निंग, डीप क्यू नेटवर्क एंड पॉलिसी ग्रेडियंट, बहुत सारे एप्स हैं जो कि इस तरह के काम के लिए यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पर इस तरह से हम लोग भी एक इस तरह से मेडिसिन से रिलेटेड या फार्मेसी से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं जो कि सोसाइटी को बेनिफिट करे। नेक्स्ट वन इज द प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। अब मेनली जो मशीन लर्निंग का काम है, डीप लर्निंग का काम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है, वो क्या है, वो है हमारा प्रेडिक्शन एनालिसिस। कि जो भी हमारे पास प्रॉम्प्ट है, जो भी हमारे पास इनपुट दिया गया है, जो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट है, उसको पहले से ही प्रिडिक्ट करना। तो जैसे कि फोरकास्टिंग, इस डिमांड की क्या, और मान लीजिए फेस्टिवल सीजन आ रहा है, किस तरह की डिमांड रहेगी, इसको फोरकास्ट करने के लिए प्रिडिक्टिव एनालिसिस किया जाता है। पेशेंट आउटकम्स के केस में कह सकते हैं, पेशेंट मान लीजिए दवाई आपके कोई यूज की, उसका क्या आउटकम रहेगा, कि जान लीजिए डॉक्टर्स अपनी डायरी में, डेंटल डॉक्टर्स मेंटेन करते हैं कि हमने ये दवाई, ये इस तरह की मेडिसिन इसको दी, उसका कितने % उसका रिजल्ट रहा। अगर उसका रिजल्ट सही आएगा तो आगे फर्दर वो उस चीज को यूज करेंगे, और रिजल्ट यदि सही नहीं आता है तो उस चीज को यूज फिर फर्दरली नहीं किया जाता है। इसी तरह से इनहेंसन डिसीजन मेकिंग में यूज की जाती है। R&D सेक्टर्स में तो प्रेडिक्टिव एनालिसिस का बहुत ज्यादा मेजर रोल है, एज वेल मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक्स। प्रेडिक्टिव एनालिसिस का जो प्रोसेस है वो क्या है, वो है कलेक्ट डेटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट मॉडल्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर मॉडल को ट्रेन करेंगे, फिर मॉडल को टेस्टिंग में जाएंगे। टेस्टिंग के बाद जब वो मॉडल हमारा टेस्ट में सफल हो जाता है तो फिर डिप्लॉय किया जाता है और फिर मॉनिटर एंड रिफाइन कर देते हैं किस चीज को, डेटा। ठीक है, प्रेडिक्टिव एनालिसिस इज प्लेइंग द मेन रोल ऑफ द। नेक्स्ट वन इज कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी डिटेक्ट्स प्रोटीन क्रिस्टल एनालिसिस। जब हमने पहले ही स्लाइड में हमने डिस्कस कर लिया है कि जब
मेनली जब हमारे पास इमेज का डेटा सेट है और इमेज के डेटा सेट को हम यूज कर रहे हैं फॉर प्रोटेक्टिंग यूजिंग द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, इट इज द कंप्यूटर विजन मशीन लर्निंग technology. And by using this technology, we improve the quality control and reduces equipment downtime. Next, we go to the generative AI. Generative AI का यूज क्या है? पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। जैसे अब किसी पर्टिकुलर पर्सन की बीमारी हो से है, कोई भी तरह की डिजीज है, उसके लाइफ स्टाइल क्या है, उसके बेस पे उसे यदि कोई दवाई प्रोवाइड कर रहा है तो वो अपनी रिक्वायरमेंट को प्रॉम्प्ट में एआई से पूछेगा और एआई उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उसे रिजल्ट प्रोवाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, उसकी मेडिकल क्या बैकग्राउंड है, उसका क्या लाइफ स्टाइल है और क्या उसकी हिस्टोरिकल उसके पास डेटा है। इससे क्या हो जाएगा? इम्प्रूविंग आउटकम्स क्या होंगे? इम्प्रूव होंगे। तो जनरेटिव एआई टेलर्स ट्रीटमेंट प्लान्स में तो पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान्स के लिए जनरेटिव एआई हेल्पफुल हो सकते हैं। किसी कोई दवाई मान लीजिए उसने पहले से ही मेंशन कर दिया है इस तरह का सॉल्ट उसके लिए फायदेमंद नहीं है, उसे लिए बीमारी रही है तो ये वाला सॉल्ट नहीं दिया जा सकता है, तो बाय यूजिंग द जनरेटिव एआई वो जनरेटिव एआई आपको उस तरह के सॉल्ट को मना कर देगा। क्यों? क्योंकि वो पूरा स्टडी कर रहा है इसके बेस पर जो उसे प्रॉम्प्ट दिया जा रहा है, और प्रॉम्प्ट में जितना अच्छा आप देंगे, जितने ज्यादा डिटेल में अपने बारे में बताएंगे, उतना ज्यादा आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। इस कहा जाता है कि डॉक्टर्स के सामने आपको कम से कम बातों को छुपाना है, ठीक है, कोर्ट के सामने, जज के सामने कम से कम बातों को छुपाना है, जिससे कि आपका रिजल्ट क्या था, बढ़िया रिजल्ट मिले। इसीलिए जनरेटिव एआई के केस में भी जब हम ज्यादा से ज्यादा चीजें एज ए प्रॉम्प्ट में देंगे तो हमें बेटर रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट वन इज द मेडिकेशन मैनेजमेंट। एआई पावर्ड टूल्स असिस्ट फार्मासिस्ट इन डिटेक्टिंग ड्रग इंटरेक्शन में, ऑप्टिमाइजिंग डोजेज में। अब कितनी हमें डोज लेनी है? 2 टाइम हमें दवाई का डोज लेनी है या 3 टाइम्स लेनी है? हमें 250 mg लेनी है, 350 mg लेनी है, तो 500 mg लेनी है। इसकी एनालिसिस के लिए भी जनरेटिव एआई का यूज किया जाता है कि आपके प्रिस्क्रिप्शन के बेस पर, आपके हिस्ट्री के बेस पर आपको बताया जाएगा कि आप एआई का यूज करके पूछ लेंगे कि हमें ये वाली दवाई हमें हमारी बॉडी के लिए, हमारी एज ये है, ये बीमारी हमें इतने दिनों से है, और उसके बेस पर फिर एआई आपको बताएगा कि इस दवाई को आपको इतने % मात्रा में लेनी है, इतनी आपको डोजेज की रिक्वायरमेंट है। जब कोई आपको ज्यादा पुरानी डिजीज हो जाती है तो आपको उसको डोज ज्यादा दी जाती है। जब आपको कोई 1-2 दिन ही बीमारी हुई, ये लास्ट स्टेज में है, तो आपके पहले डॉक्टर क्या काम करता है? डोज को कम करता है। पहले मान लीजिए 4 बार आपको कोई दवाई देना पड़ रहा है, तो फिर कैसे कम करेगा? 3 टाइम्स पर लाएगा, फिर 2 टाइम्स पर लाएगा, फिर सिंगल टाइम्स, फिर वो उसको क्या कर देगा? फिनिश कर देगा। ठीक है, तो इसी तरह से मेडिकेशन फील्ड में भी जनरेटिव एआई का यूज किया जा रहा है। Next one is chatbots and virtual assistants. These tools provide 24/7 supports for patients. By using chatbots, आप chatbot का यूज करके बहुत तरह की मेडिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए किसी डॉक्टर के पास आप जाते हैं दिखाने के लिए, तो वो आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर देता है। उसका व्हाट्सएप पे आप अपनी बीमारी के बारे में बता दीजिए कि मुझे इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके रिप्लाई में वो भी कुछ ना कुछ आपको कमेंट्स पास कर देंगे। तो अगर आपके पास ऐसा बन जाए कि वो डॉक्टर की तरह ही एक चैटबॉट बिहेव करे, तो जो आपने दिया है, और डॉक्टर के साथ प्रॉब्लम ये है कि जब उन्हें टाइम मिलेगा उसके बेस पे वो आपको रिप्लाई कर पाएंगे। यदि हम कोई ऐसा चैटबॉट, ऐसा वर्चुअल असिस्टेंट डेवलप कर देते हैं कि जो कि आपको तुरंत ही बता दे कि आपकी इस कंडीशन में हमें क्या करना है, ठीक है, और वो 24/7 अवेलेबल हो, तो जनरेटिव एआई से इस तरह के बेनिफिट्स आपको मिलेंगे कि आप इसी तरह के मेडिकल से रिलेटेड चैटबॉट्स प्रिपेयर कर पाएंगे जो कि आपकी प्रॉब्लम्स को 24/7 सॉल्व करेंगे। जैसे सपोज, जैसे आज के समय में बैंकिंग का केस है, आप कभी भी अपने मनी को विड्रॉ कर सकते हैं, कभी भी डिपॉजिट कर सकते हैं। पहले के समय में इस तरह की फैसिलिटी नहीं थी। अब धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ, तो अब डॉक्टर्स भी इस तरह की फैसिलिटी को अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि मान लीजिए प्राइमरी केसेस हैं, उसमें केवल आप चैटबॉट्स का यूज कर सकते हैं और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू। मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन में भी जनरेटिव एआई का यूज किया जाएगा।
जैसे कोई भी चीज हमें बल्क में एक साथ ही कमर्शलाइज करनी है, बताना है, कई तरह के सेम टाइप के पेशेंट्स को बताना है कि इस तरह की ये आपके पास बीमारी है। इस कोविड-19 के केस में ये चीज हमारे पास आई थी कि हमें बताया गया था कि हमें कौन कौन सी दवाइयाँ हमें लेनी है, कि हमें ऑक्सीजन सबको अपने घर में रखना है, ठीक है, सिलेंडर्स को उनका यूज करना है, कौन कौन सी दवाइयाँ हमें पैरासीटामोल रखनी है, एजिथ्रोमाइसिन अपने घर में रखनी है। क्योंकि ये हेल्पफुल थी। तो वो किसके माध्यम से हो पा रहा था? वो जो टीवी के माध्यम से, फोन के माध्यम से और जो कम्युनिकेशन मीडिया थे उनके माध्यम से हमें पता चल पा रहा था। तो इसी तरह से जनरेटिव एआई अब हमारे पास ऐसा टूल बन जाएगा जिसमें यदि सभी ने पूछा कि हमें किस तरह की फीवर में क्या दवाई लेनी है तो बता देगा कि हमें पैरासीटामोल लेनी है या इस तरह की दवाई लेनी है। रेगुलेटरी डॉक्यूमेंटेशन में भी इसका बहुत ज्यादा यूज होगा, किसका? जनरेटिव एआई का। इट ऑटोमेट्स द क्रिएशन ऑफ कंप्लायंस रिपोर्ट। बहुत तरह की रिपोर्ट आती जाती है, अब पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सी रिपोर्ट आ गई है, उसमें क्या चेंजेस कर दिए गए, क्या उसमें पहले था अब उसमें क्या नया चेंजेस कर दिया गया है। तो उसको बर्डन को कम करने के लिए जनरेटिव एआई उसमें से फिल्टर करके बता देगा कि जो एग्जिस्टिंग है उस एग्जिस्टिंग की जगह ये चीज नई लाइन जोड़ी गई है, ये नए की पॉइंट्स जोड़े गए हैं, इनको केवल आप स्टडी कर लीजिए, आपको पूरी रिपोर्ट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ये तो हमारा डिस्कशन हो गया जो प्रेजेंट में जहां पर भी हमारा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है, क्या क्या इनके मॉडल्स हैं, क्या क्या इसकी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स को हेल्प करेंगी। अब जो प्रेजेंट में जो हमारी रिसर्च चल रही है वो क्या है, अब हम कुछ उस पर बात कर लेते हैं। तो करेंट रिसर्च इन फार्मेसी मेन है, उस पर हमने यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कुछ रिसर्च पेपर्स। अब हम बात करेंगे कुछ करेंट रिसर्च पेपर्स की। जैसे एक पेपर था हमारा फ्रॉम द पेपर है न्यू हॉरिजन्स पायनियर फार्मास्यूटिकल R&D विद जनरेटिव एआई फ्रॉम लैब टू क्लिनिक। अभी तक जो सब कुछ काम हो रहा है वो हमारे पास कहाँ पर हो रहा है? लैब में हो रहा है। इन्होंने इस पेपर में बताया कि जो लैब में जो काम हो रहा है उसको हमें कहाँ पर ले जाना चाहिए? क्लिनिक पे ले जाना चाहिए, उसको क्लिनिकल और पर भी उसका हमें यूज करना चाहिए। दिस पेपर दिस इम्पैक्ट विल रीच क्लिनिकल डेवलपमेंट। जनरेटिव एआई को कहाँ पर हम यूज करेंगे? क्लिनिकल डेवलपमेंट में हम यूज करेंगे फॉर इनहेंसिंग द पेशेंट एक्सपीरियंस and driving operational efficiency and unlocking digital innovation to better tackle the further burden of disease. डिजीज को बेटरमेंट तरीके से यूज करने के लिए हम जनरेटिव एआई को फार्मेसी सेक्टर्स में यूज कर सकते हैं। ये पेपर है इनोवेशन इन फार्मेसी IIP में, जिसका ये टाइटल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फार्मेसी एन ओवरव्यू ऑफ इनोवेशन। जैसा कि हमने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इनोवेशन में यूज किया जा रहा है। जो नई चीजें आप डेवलप कर रहे हैं, जो नए प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, नए टूल्स डेवलप कर रहे हैं, वो सब आपका अब फार्मेसी सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके होगा। तो ये आपका रिसर्च पेपर है, ठीक है, इसमें 6 ऑथर्स हैं। इन्होंने भी एप्लीकेबिलिटी ऑफ एआई इन फार्मेसी फील्ड्स पर रिसर्च वर्क किया। 2022 में ये पेपर पब्लिश किया गया। नेक्स्ट पेपर स्पंजर नेचर का पेपर है जो कि 2022 में पब्लिश किया गया जनवरी में। इसका टाइटल है दैट इज मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जितने भी इस पेपर को यदि आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से कुछ फाइंडिंग्स मिलेंगी कि हमें एआई एंड मशीन लर्निंग को फार्मेसी सेक्टर में हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। रिव्यू पेपर है और इसके बेस पर आप जब स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि फार्मास्यूटिकल साइंस में कहाँ पर भी एआई एंड मशीन लर्निंग का यूज कर सकते हैं। इन पेपर से ऑथेंटिसिटी मिलती है कि जो काम हम कह रहा है, जो हमने कहा है प्रीवियसली, वो काम कितने % हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो पेपर प्रोवाइड द ऑथेंटिसिटी टू डेवलप एनी काइंड ऑफ एआई बेस्ड मॉडल इन द फील्ड ऑफ द फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। Next one, this is the conference paper, Emerging Role of Machine Learning in Field of Pharmacology. This paper is published in 2023.
नेक्स्ट वन इज द एल्सवेयर प्रोपर रिसर्च इन सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फार्मेसी, जिसका टाइटल है एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन करंट फार्मेसी प्रैक्टिस स्कोपिंग रिव्यू। ठीक, इसमें भी कई सारे एप्लीकेशंस की बात की गई है। इन क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं एआई के, जो कि फार्मेसी में हम यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज द न्यू हॉरिजन्स पायनियर फार्मास्यूटिकल R&D विद जनरेटिव एआई फ्रॉम लैब टू क्लिनिक, जिसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, जो कि 2023 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट इज ड्रग डिस्कवरी टुडे, इज दिस पेपर इज द जनरेटिव एआई ड्राइविंग प्रोडक्टिविटी। हमारे एआई जनरेटिव एआई का पर्पज क्या है कि ड्राइविंग प्रोडक्टिविटी एंड साइंटिफिक ब्रेक थ्रू इन द फार्मास्यूटिकल एंड R&D सेक्टर। जनरेटिव एआई का यूज करके हमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है। तो दवाइयों की, जो मेडिसिन की, ड्रग्स की जो कमियां हैं, उनको हमें क्या करना है, खत्म करना है, रिमूव करना है। जो हाल ही में ड्रग डिस्कवरी टुडे में मैगजीन में ये पेपर पब्लिश हुआ है जनवरी 2025 में। नेक्स्ट वन इज जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ये पेपर है हमारा, रिव्यू पेपर है, दैट इज द फ्यूचर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। अब इसमें साफ साफ इससे क्लियर है कि फ्यूचर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स का फ्यूचर ही अब आप देखेंगे क्या है, इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। चाहे वो ड्रग डिस्कवरी हो, चाहे ड्रग का डेवलपमेंट हो, सभी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि अब हमें टाइम सेव करना है, मनी सेव करना है। जहां हमने शुरुआत में कहा था कि हमारे पास फेलियर रेट हमें कम करना है, 10 में से एक ही हमारा ड्रग पास हो पाता है, अब उस चीज को हमें इंक्रीज करना है। अब इन रिसर्च पेपर्स के बेस पे कुछ हमारी की फाइंडिंग्स हैं, दैट आर द जनरेटिव एआई का क्या यूज करेंगे, एआई एक्सेलरेट ड्रग डिस्कवरी। जब हम इन सब टेक्नोलॉजीज का यूज करेंगे तो ड्रग डिस्कवरी हमारी क्या हो जाएगी, एक्सेलरेट कर जाएगी, इंप्रूवमेंट कर जाएगी, इम्प्रूव टारगेट्स को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड बूस्ट एंड R&D प्रोडक्टिविटी। R&D में एक तरह से बूस्टिंग का काम करेगा कौन, जनरेटिव एआई। नेक्स्ट वन सिंथेटिक डेटा जनरेशन, रिसर्च, क्लिनिकल डेवलपमेंट एंड ट्रायल डिजाइन। कोई भी ट्रायल डिजाइन होगा, कोई भी डेवलपमेंट होगा, उसका यूज किया जाएगा किसके लिए, सिंथेटिक डेटा के लिए। नेक्स्ट वन इज स्मार्टर वर्चुअल असिस्टेंट एंड रिवलाइजिंग R&D प्रोसेस। तो बहुत तरह के हमारे पास वर्चुअल असिस्टेंट्स मिल जाएंगे। जैसे हमारे पास बहुत तरह के गूगल ने अभी असिस्टेंट दे रखे हैं जो कि ह्यूमन के काम को आसानी से कर सकते हैं। पहले मीटिंग करने के लिए हमें सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा होना पड़ता था, अब हमारे पास नया साधन आ गया है कि हम गूगल मीट के मीडियम से सभी लोग आपस में वर्चुअली कनेक्टेड हैं। और इस वेबिनार को जैसे हम सुन रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट किसका है, ये गूगल का वर्चुअल असिस्टेंट की तरह हम काम कर रहे हैं। AI ड्रिवन इटरेशन लूप ऑप्टिमाइज R&D पाइपलाइनिंग इंप्रूव इफिशियंसी। AI का जब यूज करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट की इफिशियंसी बढ़ जाएगी। न्यू कॉन्सेप्ट मल्टी एजेंट AI, जो अब न्यूली कमिंग टॉपिक है या टाइटल है, मल्टी एजेंट AI एंड ऑटोमेटेड हाइपोथेसिस जनरेशन एक्सेलरेट ट्रीटमेंट डिलीवरी टाइम्स। तो ट्रीटमेंट में जो हमारा डिलीवरी टाइम्स है उसको हम काफी रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग अप्लाइंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द फार्मेसी सेक्टर। दीज आर आल्सो द की फाइंड्स। सुपरवाइज लर्निंग तो हम मेनली यूज करेंगे किसमें, ड्रग एफिकेसी प्रेडिक्शन में, पेशेंट आउटकम में एंड प्रेडिक्शन। एंड अनसुपरवाइज का हम यूज करेंगे पेशेंट क्लस्टरिंग में, बायोमार्कर डिस्कवरी में। रीइंफोर्स्ड लर्निंग का हम यूज करेंगे ट्रीटमेंट ऑप्टिमाइजेशन में ओवर टाइम टू टाइम। NLP का हम यूज करेंगे माइनिंग क्लिनिकल नोट्स, जो हमने बताया था कि जो क्लिनिकल नोट्स हैं, जो लिटरेचर्स है, रेगुलेटरी बॉडीज का जो लिटरेचर्स है, उसके बेस पे हमें कुछ ना कुछ फाइंडिंग्स करना है। तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी। डीप लर्निंग, CNN मॉडल और अनलर्निंग मॉडल की बात आएगी, तो एट दैट टाइम वी यूज द मेडिकल इमेज एनालिसिस करेंगे इन मॉडल्स का यूज करके, जेनोमिक्स डेटा इंटरप्रिटेशन का यूज करेंगे इन मॉडल्स का यूज करके। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग मेथड्स। इन द केस ऑफ फार्मेसी, दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस where these learning models, these learning concepts may be used। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट सिनेरियो में एप्लीकेशंस ऑफ AI।
मेंटेनिंग ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स। मेन प्रॉब्लम क्या है हमारे पास कि हमारे मेडिकल रिकॉर्ड्स को हम मेंटेन नहीं करते। आज कोई हमारे पास डिजीज हुई, उसको हमने डॉक्टर को दिखाया, उसके बाद वो फिनिश हो गई, फिर 2 महीने बाद यदि कोई चीज अकर हो रही है तो उसका पुराने वाले से शायद कोई लिंक हो, लेकिन हमारे पास कोई मेडिकल मेंटेनिंग करने रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है उसी से अकर हो रही है, लेकिन अब उसका इलाज नए तरीके से शुरू हो जाएगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया जा सकता। द कलेक्शन ऑफ, स्टोरेज, नॉर्मलाइजिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ डेटा आर मेड इजी बाय इम्प्लीमेंटिंग द एआई सिस्टम। अब इसमें जैसे हमने बताया, शुरुआत जब हमारी हुई थी किससे, गूगल डीप माइंड। ये हेल्थ प्रोजेक्ट है किसका, गूगल का। और इस प्रोजेक्ट का इसका काम क्या है, गूगल डीप माइंड इज ए लीडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च लैब है, जो कि अल्फाबेट कंपनी है, इसकी गूगल की, उसका ये स्टार्टअप प्रोजेक्ट है एक तरह से कह सकते हैं, जो कि हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करने के लिए यूज किया जा रहा है। फोकस ऑन बिल्डिंग एडवांस एआई सिस्टम को डेवलप करने के लिए और कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया हेल्थ प्रोजेक्ट है किसका, गूगल का। इसी गूगल डीप माइंड ने ये जो हमारे उनके प्रेसिडेंट हैं उन्हीं को नोबेल प्राइज दिया गया किसके लिए, प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रोडिक्शन के लिए। सेकेंड वन इज ट्रीटमेंट प्लान डिजाइनिंग। अब हमें पता तो चल गया हमें ट्रीटमेंट करना है, लेकिन उसकी क्या प्लानिंग है, कोई प्लानिंग है कि नहीं है, उसको भी इंश्योर करने के लिए एआई का यूज कर सकते हैं। फॉर डिजाइनिंग इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्लान्स इज पॉसिबल with the help of artificial intelligence technology. When any critical कोई conditions है पेशेंट के साथ, उसको सॉल्व करने के लिए एआई का यूज किया जा सकता है। All the previous data and reports, clinical expertise and etc. are considered in the designing of treatment plan assisted by this technology. अब प्रीवियस रिकॉर्ड्स है, प्रीवियस क्लिनिकल एक्सपर्ट्स की हिस्ट्री हमारे पास गिवन है, उसके बेस पे उसको बेटर तरीके से उसका ट्रीटमेंट प्लान किया जा सकता है। IBM वॉटसन फॉर ऑन्कोलॉजी एक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यूज किया जा रहा है, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है दैट एनालाइज पेशेंट्स डेटा अगेंस्ट थाउजेंड्स ऑफ हिस्टोरिकल केस एंड इनसाइट्स gleaned फ्रॉम वर्किंग थाउजेंड्स ऑफ आवर्स विद मेमोरियल स्लोन कैंसर के लिए यूज किया जाने वाला सॉफ्टवेयर ऐसे सर्विस है IBM वॉटसन, और किसके लिए, ऑन्कोलॉजी की। नेक्स्ट वन इज असिस्टिंग इन रिपीटेटिव टास्क। ज्यादातर हम एक सेम तरह के काम को करने के लिए एक आदमी को डिप्लॉय कर देते हैं, उसका सुबह से शाम तक का काम एक ही तरह का है, चाहे वो ECG को एक्सपर्ट है तो ECG करेगा, ECHO का एक्सपर्ट है तो उसी को करेगा, और उसके बेस पे फिर उस बीमारी का डिजीज को आइडेंटिफाई करता है। तो इस तरह के काम को करने के लिए भी क्योंकि उसमें किसी भी तरह का कोई इनोवेशन नहीं हो रहा, सेम टाइप का पैटर्न यूज किया जा रहा है, तो सेम टाइप की डिजीज को वो प्रिडिक्ट कर रहा है। इसको भी करने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम यूज करके कोई मॉडल प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे मेडिकल सीव की बात करें, मेडिकल सीव एन एल्गोरिथम लॉन्च बाय IBM की बनाई हुई एक एल्गोरिथम है। इट इज यूज्ड फॉर द कॉग्निटिव असिस्टेंट having good analytical and reasoning abilities. डीप लर्निंग में जैसे एक्सरे इमेजेस हुए, CT स्कैन इमेजेस हुआ, ECHO हुआ, ECG हुआ, इन इमेजेस को एनालिसिस करके हम कुछ भी प्रोडिक्ट कर सकते हैं। तो दीज रिपीटेटिव टास्क जो हो रहा है, बार बार उसी काम को करने के लिए हमारी मेन पावर जो खर्च हो रही है, उसको रिप्लेस कर देगा कौन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द आने वाले समय। नेक्स्ट and we move to the health support and medication assistance के लिए भी, मेडिकल असिस्टेंस के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया किया जाएगा इन फ्यूचर। जैसे एक मॉली है, मॉली ये क्या है, एक स्टार्टअप है, इट्स डिजाइन्ड एज ए वर्चुअल नर्स, रिसीव्स ए प्लीजेंट वॉइस along with a cordial face। अरे आप किसी भी नर्स के पास जाते हैं प्रैक्टिकली, यदि वो आपसे हंस के बात करती है, आपकी वॉइस को, उसकी कैसी वॉइस पे डिपेंड करता है कि पेशेंट को उस समय कैसा फील हो रहा है। तो इसी तरह से एक मॉली क्या है, एक वर्चुअल नर्स की तरह आपको दिखेगी एक इमेज है, जिसकी वॉइस ऐसे लगेगी आपको थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिलेगा। इस तरह के ऐप को, इस तरह के स्टार्टअप को आप भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इट्स एम ऑफ इट इज टू हेल्पिंग पेशेंट्स टू गाइड द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स एज वेल एज सपोर्ट देम with their chronic conditions during
डॉक्टर्स जब विजिट कर रहा है तो उस तरह से वो वर्चुअल नर्स इसको सपोर्ट करेगी. दिस इज द पिक्चर ऑफ मॉली द वर्चुअल नर्स. Next one is the accuracy of medicine. AI shows a good impact on genomics and genetic development. Deep Genomics is an AI system is useful for observing patterns in the genetic information. Genetic data से related information को predict करने के लिए Deep Genomics AI systems use किया जाता है. The Deep Genomics uses its AI to automate and accelerate ड्रग डिस्कवरी के लिए यूजफुल हो जाए, रिड्यूसिंग द टाइम एंड कॉस्ट कंपेयर टू द ट्रेडिशनल लैब बेस्ड मेथड्स. ड्रग क्रिएशन में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करेंगे. द डेवलपमेंट और क्रिएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल टेक्स मोर देन डिकेड. एक दवाई को बनाने के लिए 10 साल लग जाते हैं, लेकिन तब भी हो सकता है उसका रिजल्ट बेटर तरीके से नहीं आ पाए. उसको कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाएगा. यूजेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशली कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क मेन कॉन्सेप्ट है किसके लिए? टू डिस्कवर एंड ऑप्टिमाइज स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग्स. नेक्स्ट, हेल्थ केयर सिस्टम में एआई का बहुत ज्यादा आगे देखेंगे कि यूज होगा. इन द हेल्थ केयर सिस्टम इफ ऑल द डेटा इज, जब सब कुछ कंप्यूटराइज हो जाएगा तो जितना हमारे पास डेटा सेट अवेलेबल है, जितना हमारे पास डेटाबेस अवेलेबल है, उसके बेस पर ही हम कुछ ना कुछ रिजल्ट प्रोवाइड कर पाएंगे, चाहे वो सेटिस्फेक्शन का हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड, चाहे वो किसी तरह से डे टू डे लाइफ का हो. लेकिन अभी हमारे पास धीरे धीरे चीजें कंप्यूटराइज हो रही हैं. जैसे नीदरलैंड एक देश है जिसमें क्या है, मेंटेन्स 97% ऑफ इनवॉइसेस इन डिजिटल फॉर्म. वहाँ सब कुछ जो डेटाबेस है मेडिकल से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, वो कैसे किया जाता है? कंप्यूटराइज किया जाता है, इन डिजिटल फॉर्म में दिया जाता है. विच कंटेन ट्रीटमेंट डेटा, क्या आपका ट्रीटमेंट हुआ, फिजिशियन का क्या, किस डॉक्टर ने किया, किस हॉस्पिटल में किया गया, क्या क्या आपको प्रिस्क्रिप्शन दिए गए, सब कुछ उसमें मेंटेन रहेगा. तो उसके बेस पर जब आप सेकंड टाइम्स मूव करेंगे तो आपके लिए हेल्थ की रिपोर्ट बनाने के लिए, हेल्थ सिस्टम एनालिसिस करने के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा. प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अर्ली डिजीज डिटेक्शन एआई जिसके बेस पे हो पाएगा, तो बहुत तरह की बीमारियों के लिए आपको अर्ली एज में अर्ली डिटेक्शन हो जाता है, तो आप उसको टाइमली रिकवर कर सकते हैं. जैसे अल्जाइमर का केस है, अल्जाइमर बिफोर सिम्टम्स अपीयर्स बाय एनालाइजिंग पेशेंट्स डेटा ट्रेंड्स. रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हॉस्पिटल्स यूज एआई टू आइडेंटिफाई हाई रिस्क पेशेंट्स एंड प्रायोरिटाइज केयर, इंप्रूविंग आउटकम्स एंड रिसोर्स एलोकेशंस. अब जैसे हम बात कर रहे हैं वर्चुअल केयर, मेडिकल, टेलीमेडिसिन की, तो एआई चैटबॉट्स आपके पास मार्केट में कुछ समय बाद अवेलेबल होंगे. जैसे एआई चैटबॉट्स आ जाएंगे तो प्लेटफॉर्म लाइक Docus.ai है, जिसमें हम GPT-4 का हम यूज कर रहे हैं. अदर मॉडल्स टू प्रोवाइड प्रिलिमिनरी डायग्नोसिस, जो कि आपको प्रिलिमिनरी लेवल पर हेल्थ से रिलेटेड एडवाइस प्रोवाइड करेंगे. और जो क्या होंगे आपकी वैलिडेटेड बाय मेडिकल प्रोफेशनल्स, जो कि मेडिकल प्रोफेशनल इस चीज को बाद में क्या करेंगे? वैलिडेट करेंगे. ठीक है, रिमोट मॉनिटरिंग हो जाएगी. मान लीजिए डॉक्टर दूर से ही देख के आपकी बीमारी को मॉनिटर्स कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कुछ सजेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं. दिस इज द एग्जांपल ऑफ Docus AI, जो सिम्टम्स बेस्ड चेकर है. जैसे आप कुछ सिम्टम्स इसमें डाल देंगे, इसमें आप इनपुट प्रोवाइड कर देंगे, और कुछ समय बाद वो आपके सिम्टम्स के बेस पर जो भी प्राइमरी प्रिस्क्रिप्शन होगा उसको प्रोवाइड कर सकता है. हॉस्पिटल ऑपरेशंस में जैसे Suli.ai ऑटोमेट्स चेक इन, कौन मरीज आ रहा है, कौन जा रहा है, इस सबको मैनेजमेंट करने के लिए हॉस्पिटल्स में भी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का यूज होगा. रिड्यूसिंग एडमिट टाइम फ्रॉम 15 मिनट. जैसे आप कोई भी एडमिट होने जाते हैं तो 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, लेकिन इस एआई टेक्नोलॉजी का यूज करके, इस एआई ऐप का यूज करके हम 1 से 5 मिनट में ही पेशेंट्स की सारी हिस्ट्री को रिकवर कर सकते हैं आसानी से. दिस इज द डायग्राम ऑफ द Suli.ai. इट कवर द पेशेंट्स ट्राइएज, इनिशियल असेसमेंट्स, अर्जेंसी. Now
Now we come to the clinical note generations. अब Surely.ai के मेन बेनिफिट्स क्या हैं? इसमें क्लिनिकल नोट जनरेशन कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग कर सकते हैं, सिस्टम कलेक्शन एंड ट्राइज कर सकते हैं, मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग हो जाएगी, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलरली एक ही लैंग्वेज में बोलेंगे तभी आपको सपोर्ट मिलेगा। बहुत तरह की कई सारी लैंग्वेज उनमें इनकॉर्पोरेट की गई हैं, जिससे कि किसी भी तरह का यदि पेशेंट आ रहा है तो उसको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, उसको भी वो यूज किया जा सकता है। अब इतने के बाद क्लिनिकल ट्रायल डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन यूजिंग एआई वी कैन यूज द ऑप्टिमाइज ट्रायल डिजाइन हम कर सकते हैं, पेशेंट स्ट्रेटिफिकेशन कर सकते हैं, एडेप्टिव ट्रायल्स कर सकते हैं एंड एंड पॉइंट सिलेक्शंस में यूज हो सकता है। दीज आर द एआई टूल्स यूज इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज में। जो एआई टूल्स यूज हो रहे हैं वो ये हैं क्लिनिकल पर्पज या अदर टाइप के पर्पज के लिए। जैसे एक है, हमने पहले ही बता दिया क्या है, IBM वाटसन हेल्थ। IBM वाटसन हेल्थ analyze vast amounts of medical literature and patient data to assess the clinical decision। यानी क्या दवाई लेनी है, क्या डिसीजन लेना है, उसके लिए IBM वाटसन हेल्थ यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन है DeepSix AI। जो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ से रिलेटेड जो रिकॉर्ड को रखने का काम है, वो काम किसका हो जाएगा, वो DeepSix AI का काम हो जाएगा, जो कि यूज करेगा किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड के रखने के लिए। नेक्स्ट वन इज पाथ AI। पाथ AI एंड AI क्योर AI बेस्ड पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम है AI क्योर, यूजिंग स्मार्टफोन वीडियो टू इंश्योर AI बेस्ड पेशेंट मॉनिटरिंग के लिए भी स्मार्टफोन में सिस्टम यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज trials.ai एंड क्योर मैट्रिक्स। दीज आर दी अदर टूल्स यूज इन द फार्मास्यूटिकल कंपनीज। अब हम एक केस स्टडी की बात करते हैं, जो कि सितंबर 2024 में 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। फर्स्ट वन इज एस्ट्राजेनेका, लीडिंग ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो उसने कि 18 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं किसके साथ, इम्यूनाई के साथ, जो कि बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, फॉर द इन AI एंड सिंगल सेल जेनोमिक्स के लिए। दिस कोलैबोरेशंस एम टू लेवरेज इम्यूनाई AI प्लेटफॉर्म to improve the efficiency and success rate of cancer trials। अब क्या हमारे सोसाइटी पर इम्पैक्ट पड़ेंगे वो हम देख लेते हैं। इनहेंस एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाएगी, सक्सेस रेट हमारा बढ़ जाएगा एंड ट्रीटमेंट अप्रोचेस हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। These are the AI driven innovation in pharmaceutical, जहाँ पर भी AI टूल्स हमारे यूज हो रहे हैं। वो है एस्ट्रोजेनेका रिसर्च फाउंडेशन यूज कर रही है, AI इंदिरा सिस्टम यूज कर रहे हैं, एंड अपोलो हॉस्पिटल्स में भी AI सिस्टम यूज हो रहा है। दीज आर दी फंडिंग एजेंसीज के नाम है, DST है, MIT है, UGC है, जो कि स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर दिस प्रिपेयरिंग दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। What are the challenges in the academia and industry collaborations? The data sharing and privacy, IP एंड लाइसेंसिंग में प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, वो कि इंडस्ट्री में जाने पे सॉल्व हो जाएगी। रेगुलेटरी एक्सेप्टेंस इंडस्ट्री का है, जो कि कॉलेज लेवल पर नहीं है, एंड मिसमैच इंसेंटिव्स हैं। एंड अब इस एकेडमिया इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस जो हमारा ऑब्जेक्टिव था सेमिनार्स का, उससे क्या बेनिफिट्स होंगे, स्टूडेंट्स का फ्रेश आइडियाज वो हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, कटिंग एज मेथड्स फ्रॉम एकेडमिया से हमें मिल सकते हैं, रियल डेटा हमें मिल सकता है इंडस्ट्री से, जिसको कि स्टूडेंट हेल्प कर सकते हैं, फंडिंग इंडस्ट्री कर सकती है, एंड स्केल फ्रॉम इंडस्ट्री। एंड फ्यूचर के ट्रेंड्स क्या रहेगा, द इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 में फर्दर एक्सेलरेट द पोस्ट टू इंटीग्रेट AI एंड ML टू क्लिनिकल ट्रायल्स एंड over operations due to an increased push towards 100% partially virtual trials and the increased use of digital technology to collect patients' data. And now thank you. Okay, sir. Thank you so much.
Any Thank you so questions from much. the audience side? Okay, thank you so much, sir, for you have to given valuable, informative, advanced, scientific, and wonderful session about its artificial intelligence in pharma between the academia and industry for innovation. Thank you so much, sir, again. And if any questions or query by the participant and audience, please ask regarding this 8 national webinar. Please question any questions by the audience or participants. Sir, one audience, one question is by the Omkar Dhale. Yes. That is question is how AI can be helpful for analytical methods development and validation for research project at college level. At the college level, Yes. college level, if the AI and ML basically dependent on the data set. अगर हमारे पास डेटा सेट यदि आपको सही तरीके से मिल रहा है, किस तरह का हमारे पास डेटा सेट मिल रहा है, चाहे आप मान लीजिए कॉलेज लेवल पे तो हम कैगल से या IEEE से ही डाउनलोड कर पाते हैं, और वो यदि हमारे पास मिल पा रहा है तो उसके बेस पर आप उस डेटा सेट की रिक्वायरमेंट के बेस पर क्या प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, वहां पर तब आप जो आपका प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो वो मॉडल हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कौन सा एप्रोप्रिएट मॉडल यूज करेंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी या प्रिडिक्शन द रिजल्ट। अब आपके पास कौन सा डेटा सेट है, क्या आपके पास अवेलेबिलिटी है, जिस डेटा सेट को आप लेंगे उसके अकॉर्डिंगली AI का मॉडल यूज किया जाएगा और फिर आप उसको प्रिडिक्ट कर पाएंगे। कॉलेज लेवल पे तो हमें सिंपल जो एल्गोरिथम्स हैं, जो बिल्ट इन एल्गोरिथम्स हैं, उन्हीं को हमें अप्लाई कर करके देखना है कि कौन सी एल्गोरिथम्स किस डेटा सेट पर यूज करने पर बेटर रिजल्ट प्रोवाइड कर रही है, एक्यूरेसी हमारे किस मॉडल को यूज करने पर बेटर आ रही है। Okay. Any question more by the audience? Any questions or queries by the participants? Please ask. Okay, sir. Thank you so much for your valuable informative sessions and easygoing artificial intelligence in a pharma between the academia and industry for innovations. It's help for us in the health industry as well as to the patients regarding with this innovation. Thank you for attending today webinar on artificial intelligence in the pharma bridging academia and industry for innovation. We hope found the informative, valuable and achieve learned skill. As a reminder, all participants will be receive the certificate by email shortly. We have appreciate your valuable time and participated and listen to this national webinar. Thank you so much, sir, as a eminent speaker for this. Sudhanshu, sir, you have to join this webinar, please. Sudhanshu Kumar Jha, sir. I think, Dr. Abhishek, sir, it was a wonderful session. Altogether, what I conceptualization all over your concept is that we can make or work on a project that was beneficial and integrated approach like AI towards bridging a gap between pharma. We can fulfill it. So I thought we can propose a book also, and maybe that book was indexed in SCI or Scopus altogether, and the chapters will be for the normal audience, for our scholars, for our professors, and it will be of no cost. I think we have to work on that, because I truly love your idea, the concept that AI having a lot of vast majority of things that pharma has been working on that. So it can be, I think, a fruitful project for us, for our audience. They can also join us writing chapters on it. So what say, Abhishek sir? Yes, sir. Yes, sir. There are so many opportunities. We can write the research paper, we can develop the project, and we can write the books on these topics. Because it is a requirement of the students also. The computer science and engineering students as well as pharmacy students there are a number of students in any university. हर जगह इनकी सीटें भर रही हैं, तो इन दोनों को कॉलेज यूज करके हम कुछ ना कुछ नया बना सकते हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिट रहेगा एज वेल एज फॉर द स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू।
Okay, I sir. think your Thank you. session has been need to be addressed in some book or maybe an article. That was the purpose of this webinar. At the end, I was thinking that we can collaboratively work. किसी बुक पे हम काम करें और उनके चैप्टर्स को SCI या स्कोपस वाला हमारा कोलैबोरेशन हो वो बुक, ताकि वो लोगों तक जाए, उनके पास एक अच्छा मौका हो कि उसमें वो चैप्टर्स लिखे, उनको कुछ पे भी ना करना पड़े और वो बुक हम अच्छी जगह, तो एक हमारे लिए एक अच्छी अप्रोच है. एंड थैंक यू दिवाकर सर for your collaboratively and supportively throughout this session. And Mr. Saneep sir, आप सबने बहुत इसको एक बहुत अच्छे से वो किया. And my team and I want Mr. Saneep Chaturvedi कि वो कुछ लास्ट में इस सेशन को कोलाइब करें. Thank you everyone. Thank you once again. As we come to the conclusion of the 8th national webinar organized by Scientistic Era, I extend my sincere thanks to all who contributed to making this event a great success. I would like to thank Dr. Divakar Shukla sir, convener of this webinar, for his valuable support and encouragement throughout the session. My heartfelt gratitude to our eminent speaker, Dr. Abhishek Kumar Mishra, for sharing his deep insights on the theme AI in Pharma Bridging Academia and Industry for Innovation. His talk has truly broadened our perspective on how AI can revolutionize pharmaceutical research and development. A special thanks to our organizing secretary, Mr. Sudhanshu Jha, for his thoughtful planning and constant efforts in making this webinar an informative and well-coordinated platform. To all our participants and attendees, thank you for your active engagement and enthusiasm. Your participation had added immense value for today's discussions. As we wrap up, let's continue exploring how AI can connect innovation research and industrial growth to shape the future of pharmacy. We welcome your idea and collaborations to keep this dialogue alive beyond today's session. Thank you once again to everyone who made this event meaningful and successful. Wishing you all continued learning and innovation ahead. Thank you. Thank you. Okay, sir. Saneep sir, thank you so much. Thank you. Once again, thanking you Thank to you, thank all you. dignitary researcher and participant. Any question again? Okay. Now in the and to all the leave this 8th national webinar. Thank you. Thank you so Thank much. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir.